नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल एक पार्ट था ए एस्ट्रिक, सॉरी ए एस्ट्रिक राइट प्लस बी एस्ट्रिक, ओके, का होल एस्ट्रिक राइट। इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, प्रूफ नहीं किया था, टू प्रूव कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी होल एस्ट्रिक राइट। सो अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो हम इजीली इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। कल ये डिस्कशन था जो पेंडिंग था राइट। अगर हम ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक लिखते हैं राइट, सो इट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी होल एस्ट्रिक। कैसे प्रूफ हो रहा है ए प्लस बी एस्ट्रिक राइट? अगर हम ए का सेट लिखेंगे राइट, कंसीडर द ए सेट, सो ए सेट मींस एप्सिलॉन राइट, ओके, comma a comma a comma up to so on right. This is a a set, okay. प्लस का मतलब होता है और, okay. Now consider the b set, so again epsilon comma b comma bb comma right up to so on, okay. Now if we combine both the part right, okay, इसका whole asterisk, okay, so use a one more bracket, okay, and use the asterisk, okay. We break up the a asterisk or b asterisk right. Now if we combine these parts, so the actual meaning of this particular expression is epsilon right comma a comma b comma a comma bb right comma up to so on right, or it's a combination of a b a b a right, all possible combinations right. So we write it down is here a b, okay, comma b a right comma a b b, okay, comma up to so on right, okay, clear. So this is an expression of a plus b whole asterisk. If you write it down a plus b whole asterisk right set, so epsilon a b a double b a b b a b b b b a, all possible combinations. So a asterisk plus b asterisk ka whole asterisk is equivalent to a plus b ka whole asterisk. Now there is any confusion regarding this part? Any confusion beta regarding this part? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट करते हैं, ओके राइट। ए एस्टिक प्लस बी एस्टिक का होल एस्टिक राइट, वी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ओके। सो फर्स्ट वी एक्सप्लोर ए एस्टिक, so a asterisk means epsilon, okay, single a double a up to so on. Plus means or right. Next b asterisk means epsilon b comma double b up to so on right. The expression giving is a asterisk plus b asterisk ka whole asterisk, so we bifurcate a asterisk and b asterisk, okay. Now apply the whole asterisk for the expression right, and again if we apply the whole asterisk for this expression, so the resultant expression is epsilon, okay, a, okay, b, now double b, and then combination of a b and b a and all possible combinations. So this expression, this set is equivalent to this expression. If you bifurcate or expand this expression a plus b whole asterisk, so the resultant set is epsilon or a or b or double a or double b or ab or ba right. So all possible combinations right, which is already lie in this set. So this proves that this expression is equivalent to this expression, okay. Yes. Clear? Clear? Yes. Is there any doubt beta? No. Okay. Now move on the next part. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको एक एक्सप्रेशन राइट करने के लिए दिया हुआ था, so each and everyone write it down that expression or not. The expression is mod right w a is less than equal to 2 right. This is the expression mod w
ओके, सफिक्स में हमारे पास में ए था, डिफाइन, ओके, एंड देन आपके पास में लेस देन इक्वल टू 2, राइट? ये एक्सप्रेशन था, WA is less than equal to 2. If you write it down the regular expression for this particular, so what is the regular expression? If we talking about the number of A's, so number of A's is less than or equal to 2. It means at least आपके पास में कितने हो सकते हैं? 0, right? और 1 और 2, right? हम right और wrong? लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? या तो एक Yes, भी sir, ए नहीं हो right. सकते, या एक ए हो सकता है, या 2 ए हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखे तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम आपसे बोलते हैं Yes, sir. या ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ओके, और अगेन वी यूज ए प्लस एप्सिलॉन। नाउ अगर हम a प्लस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन को यूज करते हैं 2 बार, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? या तो एक a हो सकता है या 2 a हो सकते हैं। मीनिंग क्लियर है ना? या केवल एप्सिलॉन हो सकता है। इज दैट क्लियर? राइट और रॉन्ग? Right, sir. ओके, अब अगर हम इसी एक्सप्रेशन को कंप्लीट करें फॉर द b पार्ट, सो इट मींस इसके पहले आपके पास में b हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, स्मॉल b है तो BST, ओके, इसके बाद B हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? B contain और not contain. So this is a regular expression of mod A less than equal to 2, right? The key point is that how to maintain the less than equal to 2, right? So less than equal to 2A means A plus epsilon, this is the first part, and multiply with A plus epsilon. So if we consider this part A or epsilon, so we contain only single A, right? And in this part we contain the epsilon, so the resultant output is single A, right? If we contain only epsilon in this part and in this part we contain also epsilon, so the resultant part is epsilon, right? Now the last part, if we contain A in this and we contain A in this part, so maximum 2A. So the condition is A is less than equal to 2. It means epsilon, single A or double A. So this expression is proof less than equal to 2 condition. But what about the B? Because the input symbols are A and B, so we use the B part, right? So B expression, B input symbol, A से पहले A contain before A, right? B contain कर सकता है, so B contain कर सकता है may और may not be, so we use BST. A के after में आपके पास में B contain हो सकता है, yes, so B may or may not be, BST. And the last part is B may or may not be, right? Is that clear? सर ए के लिए अभी क्लियर नहीं हो रहा है इसमें। ए के लिए क्लियर नहीं हो रहा बेटा। ए के लिए Yes, क्या sir. कंडीशन थी आपके पास? अगर हम लेस देन की बात करें तो ए के हो सकता है, राइट, एप्सिलॉन हो सकता है, या फिर डबल ए हो सकता है। यही Double A. तीन, राइट, यही 3 पार्ट होंगे। ओके, Right, sir. क्लियर? सो अगर इन 3 पार्ट को हमें एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखना है तो हम कैसे लिखें, राइट? तो एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने बोला कि अगर ए हो सकता है और एप्सिलॉन हो सकता है, ये तो हमने एक पार्ट में बना दिया, या तो ए होगा या एप्सिलॉन होगा, ये epsilon तो होगा। प्रूफ हो गई। लेकिन हाँ। दूसरा पार्ट में हम ए का अगर मल्टीप्लाई करते हैं केवल, राइट, सो Yes, हमारे sir. पास में क्या मीनिंग हुआ? अब यहाँ पे एटलीस्ट 1 ए तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ए को मल्टीप्लाई में यूज किया हुआ है। मीनिंग समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ए नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर हमें Yes, यही sir. चीज कहनी है कि यहाँ पे ए हो सकता है और ए नहीं भी हो सकता है, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? ए प्लस एप्सिलॉन। अब ये पार्ट क्या हो गया? देखो, या तो एक ए हो सकता है या यहाँ पे भी ए हो सकता है। इट मींस डबल ए की कंडीशन प्रूफ हो गई। अगर यहाँ Yes. पे ए है और यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है, तो इट मींस सिंगल ए की कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पे भी एप्सिलॉन है और यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, तो इट मींस किसकी कंडीशन फॉलो हो गई? एप्सिलॉन की। क्योंकि एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एप्सिलॉन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? एप्सिलॉन मिलेगा। Epsilon. ठीक है, क्लियर है चीज? सो जब हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया, सो अब रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में क्या बचा हुआ है? बी को मैनेज करना है।
So सर बी का तो क्लियर हो गया था, बस B ए का का ही clear- थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था ओके बस। सो नाउ इन होल क्लास किसी को कोई प्रॉब्लम है इस रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने में? नहीं. नाउ राइट इट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज बी. थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज बी. Write it down the expression. Third symbol from left hand is B. Third symbol from left hand is B. Right? It means अगर हम लेफ्ट हैंड से बात करें तो लेफ्ट हैंड से हमारे पास में थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए? B होना चाहिए. राइट? क्लियर? उसके पहले आपके पास में कुछ भी हो सकता है, आइदर A और B, बट थर्ड सिंबल हमेशा आपके पास में लेफ्ट हैंड से क्या होना चाहिए? B होना चाहिए. नाउ अब आप अपना दिमाग यूज करो और बताओ कि आपके पास में क्या एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो. थर्ड सिंबल बी है, राइट? तो थर्ड सिंबल अगर हमें बी बनाना है तो हम आपसे बोल सकते हैं कि उसके पहले ए और बी हो सकता है, राइट? सॉरी, और क्या हो सकता है? ए और बी हो सकता है, लेकिन थर्ड सिंबल हमारे पास में क्या होना चाहिए? बी. यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है? देखो ये पार्ट समझ में आ रहा है, यस या नो? थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज यस बी, सर। राइट? सो अब आप Yeah. देखो, थोड़ा सा आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं. थर्ड सिंबल बी है, हमने किसके लिए रिजिड कंडीशंस रखी हुई है? वी टॉकिंग अबाउट द ओनली थर्ड सिंबल. सो बिफोर थर्ड सिंबल आइदर ए और बी मे और मे नॉट बी, राइट? सो वी यूज ए और बी. अब इन दिस पार्ट ए और बी, इट इज कंपल्सरी आइदर ए और बी, एनी वन सिंबल इज कंटेन्ड, either A or B, right? Or maybe, right? Clear? A plus B. In this part, we also at least one symbol, right? Either A or B is contained. So we're talking about A, B, B. If we use this expression, so the minimum string is A, B, right? And the third symbol is B. Clear? Right? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में थर्ड सिंबल क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है, राइट? हम ए और बी में से किसी एक सिंबल को ही कंसीडर कर सकते हैं, या तो ए को या बी को. यही लॉजिक होता है. अगर हमने इसके ऊपर एस्ट्रिक नहीं लगाया तो इसका मीनिंग क्या हुआ? या तो ए कंसीडर होगा या बी कंसीडर होगा. ये चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करी थी. तो हमने सपोज पहली बार में ए कंसीडर कर लिया, नेक्स्ट बार में हमने बोला बी कंसीडर होगा, और इस वाले पार्ट में से हमने ए को कंसीडर कर लिया, और लास्ट वाला पार्ट बी है. एक बार में हमने बोला हम पहले वाले में भी बी लेंगे, दूसरे वाले में भी लेंगे, और तीसरा तो हमारे पास में बी है. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ए और बी, राइट? मीनिंग समझ में आ रहा है? तो इन एनी केस आपके पास में हमेशा थर्ड सिंबल आपको क्या मिल रहा है? देखो थर्ड सिंबल आपको हमेशा क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है. यही आपका लॉजिक था. लेकिन क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट है? कितने लोग मुझे आंसर कर सकते हो कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट है? नो Yes, सर, sir. कंप्लीट नहीं है, बाद भी कंप्लीट कुछ नहीं जा है. सकता है। ओके लास्ट सो में a plus b का होल एस्ट्रिक दिया. ओके करेक्ट है बेटा, लास्ट में हम a Yes, प्लस sir. बी का होल एस्टिक लिखेंगे, राइट? सो अब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. कोई भी क्लास में ऐसा है जिसको ये डाउट हो रहा है कि लास्ट में हम a प्लस बी का होल एस्टिक क्यों लिख रहे हैं? एनीवन विदाउट एनी सर हेजिटेशन? सर 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 हाँ. क्वेश्चन क्या था सर, एक बार बताइए, क्योंकि सर मैं अभी जस्ट ओके क्वेश्चन बेटा आपके पास में था थर्ड सिंबल आपके पास में हमेशा बी होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. यस सर, तब सही है सर. क्लियर? सो अब मेरा क्वेश्चन केवल ये है, कोई भी क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये चीज नहीं क्लियर हो रही है कि a प्लस बी का होल एस्ट्रिक क्यों लिखा है फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट हमने a प्लस बी दो बार क्यों लिखा है, और इसके बाद b क्यों लिखा हुआ है? एनीवन, किसी को भी कोई डाउट हो विदाउट एनी हिच? मुझे समझ नहीं आया सर, लास्ट वाला a प्लस बी एस्ट्रिक. ओके बेटा दिव्या, देखो नॉर्मली क्या है, हमारे पास में ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, थर्ड सिंबल. अब आप मुझे बताओ थर्ड सिंबल के बाद भी तो कोई सिंबल हो सकता है. मान लो इसके बाद हम करें ए बी आ रहा है, राइट? कोई स्ट्रिंग ए बी बी या इस तरीके की है, या यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया, इस सिंबल के पास में हमारे पास में बी ए बी आ गया, राइट? इसके पास हमारे पास में ए बी बी ए, राइट? इस तरीके के सिंबल्स ऑकर हो रहे हैं, राइट? सो अब इन वाली कंडीशंस को हम कैसे जस्टिफाई करें? मीनिंग समझ में आ रहा है? सो इन वाली कंडीशन में क्या है, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है. तो हमने क्या लिखा? ए और बी कोई भी आ सकता है, लेकिन ए और बी के कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. तो हमने क्या लगा दिया? ऊपर एस्ट्रिक लगा दिया. मीनिंग समझ में आ रहा है? ए बी का एस्ट्रिक का मीनिंग सबको क्लियर हो रहा है, राइट? ए बी का एस्ट्रिक का मीनिंग क्या है आपके पास में? हम सेम सिंबल्स को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने ए प्लस एप्सिलॉन लिखा है या ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो वन टाइम में हम या तो ए लिख सकते हैं या फिर बी लिख सकते हैं.
अब हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में या तो ए आएगा या एप्सिलॉन आएगा, इस कंडीशन में या तो ए आएगा या बी आएगा, राइट। तो इन दिस पार्ट हम कोई भी एक पर्टिकुलर इनपुट पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं, दोनों इनपुट पार्ट नहीं आ सकते। लेकिन अगर हमने एस्टेरिक लगा दिया, जैसे ए प्लस बी एस्टेरिक लगा दिया, तो हम ए बी दोनों लिख सकते हैं, एक बार में ए आया और दूसरी बार में बी आया। अगर हमने ए बी एस्टेरिक लगाया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, ए प्लस बी के एस्टेरिक पे ए बी सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर हम ए प्लस बी का एस्टेरिक नहीं लिखते हैं तो फिर ए बी ए प्लस बी में सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर है चीज बेटा? यस सर। ओके। अनिकेत, सौरभ एंड शुभम, बेटा कुछ प्रॉब्लम है आपके माइक्रोफोन पे? एनीवन, कोई भी इनको कम्युनिकेट करोगे थ्रू वॉइस ज्वाइन करें, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? नाउ अब अगर हम आपसे बोलते हैं 28 सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए, 28 सिंबल, राइट। सो हमने आपको कल लिखने का मीनिंग भी बताया था कि हम इस चीज को, अगर आप बहुत ज्यादा पावर हमारे पास में बढ़ रही है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल, राइट। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपने a प्लस बी को 2 टाइम्स यूज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हमें b चाहिए था और फिर हमारे पास में a प्लस बी का होल, राइट। So this expression, right, is equivalent to this expression. Okay, clear है चीज? मीनिंग क्लियर हो रहा है? This expression is equivalent to lower part, lower portions, right? This is equivalent to this. Okay, this expression or this expression are the same, right? This is another way to writing down the regular expression, but we preferred always this method, right? But in case the power are increased, right, you feel difficulty to write down 27 times, right, a plus b, so we use the shortcut method, a plus b ka whole square or a plus b ka 27 parts, right? Okay, clear? So write down the question, 28 symbol from right hand side is a, write down the regular expression and post it me in chat window. सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए। Okay, 28 symbol from right hand side, okay, is a. Okay, करेक्ट है बेटा, फर्स्ट वन मेरे को आंसर दिया है रोल नंबर। सर क्वेश्चन रिपीट करिए जरा। क्वेश्चन बेटा है 28 सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक? सर राइट है कि लेफ्ट? राइट हैंड साइड इज ए। ओके, 31 करेक्ट है बेटा निकिता आपका आंसर। ओके, नहीं 27 फ्रॉम राइट हैंड साइड है निकिता, आपने किस साइड से यूज किया? उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। ओके, क्वेश्चन कंफर्म नहीं। ओके, मेहताब करेक्ट है बेटा, a प्लस बी एस टी, ओके करेक्ट है, राइट। अरुण करेक्ट है बेटा, राइट। तो मीनिंग सबको समझ में आ रहा है? 28 सिंबल की बात हो रही है, तो 28 सिंबल के पहले आपके पास में कितने सिंबल आने चाहिए? 27 सिंबल आने चाहिए। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास में राइट हैंड साइड की बात हो रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने एस्टेरिक यूज कर लिया। अब 28 सिंबल क्या हो सकता है? ए हो सकता है, और इसके पहले आपके पास में आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, वो कितनी बार आएंगे आपके पास में? 27 टाइम्स आएंगे। क्लियर? सो दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर इसको एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ऊपर वाले पार्ट को समझना। हमने जब आपको बोला हुआ था कि थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज बी, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज बी। पहला सिंबल क्या हो सकता है ए प्लस बी में? ए, राइट। इस वाले ए प्लस बी में आइदर ए और बी कोई भी हम ले लेते। तीसरा सिंबल हमें हमेशा क्या मिलेगा? बी मिलेगा। नाउ सेम एज प्रोसीजर पे अगर हम यहां से बात करें कि हमारे पास में 28 सिंबल हमें राइट हैंड साइड से क्या चाहिए? ए चाहिए। तो इस मींस इसके राइट हैंड साइड पे आपके पास में 27 ए या बी या ए बी का कोई भी पार्ट होना चाहिए, राइट। सो हमें क्या करना है? a प्लस बी के 27 टाइम्स यहाँ पे लिख देना है, राइट। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हर एक ब्रैकेट को कितनी बार लिखना है? 27।
सो हमने इसको शॉर्टकट में यूज कर लिया, a प्लस बी पावर 27। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी कितनी बार रिपीट है, 27 टाइम। सो अब आइदर a और b, हम कितनी बार भी कोई भी a और b ले तो हमें कितनी टोटल वैल्यूज मिलेंगे, आइदर a और b की 27 मिलेंगी, और कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास में कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 27। तो 27 के बाद राइट हैंड साइड पे कौन सा सिंबल आ रहा है, a आ रहा है, राइट। यही तो आपके पास आपको प्रूव करना था कि 28 सिंबल आपके पास में हमेशा क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है चीज? ओके, यहाँ पे किसी को डाउट हो पूछ लो बेटा। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, mod w equal to 0 mod 3. Write it down here. Okay, mod w, just mod w, okay, साइज छोटा हो गया, no, mod w equal to 0 mod 3 equal to 0 mod 3, right? This is a problem, 0 mod 3. अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं, राइट, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, mod 3 का रेगुलर एक्सप्रेशन सबको याद है, mod w इक्वल टू 3 का रेगुलर एक्सप्रेशन सबको याद है, mod w इक्वल टू 3, यस या नो? यस सर। याद है ना, क्या बना था, a a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 टाइम्स, राइट। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या बोला हुआ है, mod 3, राइट। अब mod 3 का मतलब हो गया a प्लस बी 3 टाइम्स हो सकता है, लेकिन साथ में 0 लगा हुआ है, इट मींस इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिखो, ठीक है, कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, a प्लस बी, राइट। इस पार्ट में किसी को दिक्कत है, हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, इसको हमने क्या लिख दिया है आपके पास में, a प्लस बी का होल क्यूब, राइट। नो, ओके, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, सिंपल a प्लस बी, राइट, a प्लस बी, ओके, नाउ a प्लस b, okay, right, and then use the capital bracket and then use the asterisk, okay. So ये किसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, 0 mod 3 का। 0 mod 3 का बेसिक मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, 0 mod 3 का मतलब है आपके पास में या तो आपके पास में ये वैल्यू मिलेगी या इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं आना चाहिए, राइट, यानी नल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर नल कैरेक्टर नहीं है तो आपके पास में क्या होगा, या तो एक ही मिलेगा या दो ही मिलेगा या तीन ही मिलेंगे, राइट। तो 0 mod 3 का मीनिंग क्लियर हो गया, राइट। आपने mod 3 के ऊपर क्या लगा दिया है, एस्टेरिस्क सिंबल यूज कर लिया है, ओके। नाउ अगर हम इसी तरीके से आपको बोले 2 mod 3 निकालना है, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, 0 की जगह, हाँ सर चल, एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया तो उससे कॉम्बिनेशन भी तो आ सकते हैं, फिर तीन से ज्यादा नहीं। हाँ बेटा, अब इसमें देखो a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी है, आइदर a ले सकते हो या तो b ले सकते हो या a ले सकते हो। सो इनमें अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यही मिलेगा। इसकी पावर में एस्टेरिस्क लगा हुआ है, यानी इस पूरे की पावर में एस्टेरिस्क लगा हुआ है, तो हम जब भी पूरे की पावर एस्टेरिस्क की बात करेंगे सो इसी का तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। 3 में 6 में 9 में यही तो कॉम्बिनेशन आएंगे, कभी भी आपके पास में 2 का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आपने एस्टेरिस्क किस पे लगा हुआ है, क्यूब पे लगा हुआ है। तो क्यूब का मतलब क्या हुआ, या तो 0 या क्यूब या 6 या 9, राइट। सो जब आप इनका मॉड लगाओगे तो हमेशा सेम ही आएगा। मीनिंग क्लियर हुआ, ओके। नाउ अब हम इसी प्रॉब्लम को चेंज करते हैं 2 mod 3 पे, तो आपको जल्दी और जो डाउट्स है वो भी क्लियर होगा। नाउ 2 mod 3 क्लियर। जब हम 2 mod 3 की बात कर रहे हैं तो 2 mod 3 का बेसिक मीनिंग क्या है आपके पास में, 2 mod 3 सबको सॉल्व करना आता है। अगर हम सिंपल 2 की बात करें, राइट, तो 2 का मतलब क्या हुआ आपके पास में, a प्लस बी का, सॉरी
मॉड 3 का मतलब आपके पास में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सबको क्लियर है। अब इसके पहले आपके पास में 2 मॉड लगा हुआ है, तो 2 मॉड का मतलब क्या होगा कि आपके पास Minimum- में दो वैल्यूज आपको चाहिए, यानी मिनिमम 2a राइट, या 2b या ab या ba की वैल्यूज आनी चाहिए, तभी आपके पास में 2 का पार्ट सॉल्व हो पाएगा। तो हम इट मींस इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखे, a प्लस बी राइट इनटू a प्लस बी राइट। फिर आपके पास में हमने कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया और इस पूरे पार्ट को हमने एज इट इज यूज कर दिया। क्लियर? अब देखो ये एक्सप्रेशन किसका था, अभी आप लोग सॉल्व कर चुके हो, ये एक्सप्रेशन किसका था आपके पास में बेटा, पावर 5 क्यों लगाया हुआ है निकिता? सर क्योंकि 2 mod 3 है ना, फिर दो हाँ, वैल्यूज तो आनी हाँ चाहिए। 2, हाँ तो अब इस चीज को समझो बेटा, 2 mod 3 को लिखोगे कैसे, आपने सोचा सही है, अप्रोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू मैथमेटिकली आपने बिल्कुल करेक्ट सोचा है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 2 mod 3 का मतलब हुआ कि आपके पास में a प्लस बी, यानी इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 मॉड है तो 3 का मतलब हो गया 3 का एस्टेरिक लगा देना है, सीधा सीधा एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। mod 3 का एक्सप्रेशन क्या हो गया आपके पास में, a प्लस बी होल क्यूब राइट का एस्टेरिक। नाउ अब इससे पहले आपके पास में क्या है, 2 मॉड चाहिए, तो इट मींस 3 वैल्यू तो यहां से मिलेंगी और 2 वैल्यूज हमें और मिनिमम चाहिए, तो हमेशा हमारे पास में अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएं 3 6 9 ठीक है 12 और के उसका मॉड लेंगे, तो उसके पहले हमेशा हमें क्या चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए, आइदर a और b, कोई भी 2 वैल्यूज हो सकती है, तो हमने क्या लिखा a प्लस बी। अब अगर हम इस पार्ट को एवेलुएट करें तो हमें या तो 2a मिलेंगे या 2b मिलेंगे या एक a b मिलेगा या एक b a मिलेगा, यही हमारी कंडीशन थी। ओके, मीनिंग क्लियर हो रहा है बेटा? ये जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ये जनरली गेट क्वेश्चंस हैं, यूपीटीओ में शायद ना भी पूछे जाए, राइट, मे बी और मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर, बट क्या कहते हैं ये गेट क्वेश्चंस है जितने भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ओके, ये गेट में पूछे जाए। नाउ अब इस वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो एक आपने ऊपर लिखा था ना मॉड इक्वल टू सॉरी w इक्वल टू 0 मॉड 3, राइट, तो इसका सर आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट किया है a प्लस बी होल क्यूब और उसके हाँ। बाद में एस्ट्रिक, राइट बेटा, तो सर इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन ये नहीं मतलब बन सकता है क्या कि एप्सिलॉन हाँ प्लस a प्लस बी का होल क्यूब और उसके बाद में बेटा प्लस? अब वही चीज है, अगर हम एप्सिलॉन को प्लस कर रहे हैं तो ये चीज हम लोगों ने लीमा में पढ़ी हुई है, चलो आज अभी हम लीमा फिर से आपको रिवाइज कराएंगे जिससे आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि अब आपका सबका दिमाग चल रहा है, माइंड आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि आपको ये समझ में आता है कि हम इसकी जगह ये लिखे तो क्या होगा, राइट, दैट इज द इनिशियल थिंग। सो जब ये चीज आपके पास आ गई तो आज हम फिर से आइडेंटिटीज को एक बार रिपीट करेंगे, तो आपके जो ये छोटे से डाउट्स हैं ये क्लियर, so don't worry, wait for 2 to 3 minutes only, right? Okay, Again we discuss the identity now. In this part किसी को कोई प्रॉब्लम है, mod w equal to 2 mod 3, किसी को कोई डाउट है? नहीं। नाउ अब हम लोगों ने एक और एक्सप्रेशन यूज किया था, सबको याद आया, जहां पे हम लोगों ने मॉड के साथ में किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को यूज किया था। हाँ यस, टेल मी बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? ओके, चल अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट, अब हम यहाँ पे सफिक्स में ए ले लेते हैं, ओके, क्लियर? नाउ अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, ओके, और इसको हम 2 की जगह अभी 0 ले लेते हैं, ओके, राइट, क्लियर? बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। अबे ये ना दिखाओ लेकिन करवा दो यार कहीं बहुत। ओके, नाउ 0, अब हमने आपके पास में एक्सप्रेशन क्या लिया हुआ है, 0 mod 2, सॉरी mod 3 लिखा हुआ है, mod 3 ले लो, mod 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 mod 2, राइट। सो mod, राइट, आपके पास में स्पेसिफिक हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, a की बात कर रहे हैं, राइट, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 mod 2 की बात कर रहे हैं। सो अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, कितने लोग अब इस जो ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको हमें मॉडिफाई करना है, कैसे मॉडिफाई करेंगे आप बताओ, एनीवन? a प्लस एप्सिलॉन, a प्लस क्यों आएगा, अब सर a प्लस नहीं सर, एप्सिलॉन हाँ, प्लस a, एप्सिलॉन प्लस a क्यों आएगा, वही मैं बोल सर रहा हूँ। a स्क्वायर का होल एस्ट्रिक, a स्क्वायर का होल एस्टेरिक नहीं बेटा, a स्क्वायर का होल एस्टेरिक नहीं,
यहाँ पे देखो किस सॉरी सर हाँ बेटा बी एस्ट्रिक ए का होल ऑफ एस्ट्रिक। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, राइट। देखो यहाँ पे आपके पास में आप क्या एक्सप्रेशन लिख रहे हो, आपने बोला कि हमें कितने एज चाहिए हैं, 2 ए मॉड 0 मॉड 2 लिखा हुआ था, इट मींस आपके पास में कितने ए हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने ए हो सकते हैं आप मुझे बताओ। मिनिमम आपके पास में मॉड 2 है तो 2 ही आपके पास में ए आएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे या फिर एक भी ए नहीं आएगा, तो हमने आपसे बोला कि एक ए लिख लो, सॉरी ओके, 2 ए आ सकते हैं ना। अब अगर 2 ए आ सकते हैं आपके पास में, तो रिमेनिंग पार्ट को आपको हैंडल करना है, राइट। इन 2 ए के बीच में आपके पास में क्या आ सकता है, बी आ सकता है, मिनिमम 2 ए चाहिए, मॉड 2 है तो मॉड 2 का मतलब आपके पास में क्या होगा, 2 ए आपको चाहिए, राइट। तो इसके पहले बी हो सकता है, तो आप इसके पहले बी लगा देते हैं, बी एस्ट्रिक, राइट ओके। इसके बाद भी हम बी एस्ट्रिक लगा देते हैं, यहाँ तक की प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे भी बी एस्ट्रिक लगा देते हैं, क्लियर। तो हमारे पास में क्या चीज कंडीशन हमने प्रूव कर ली कि हमारे पास में मॉड 2 वाला पार्ट हमारे पास में सॉल्व हो रहा है, लेकिन मॉड 2 में आपके पास में क्या है, 0 भी तो आ सकता है, 0 मॉड 2 है, तो 0 मॉड 2 का मतलब क्या होगा, अगर हम इसके पूरे के एस्ट्रिक लगा दें, राइट, तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी, राइट। अब अगर हम होल एस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो होल एस्ट्रिक का मतलब है या तो ये पूरा नल होगा, इज दैट क्लियर, या फिर अगर हम इसके सेपरेट पार्ट की बात करें तो बी नल हो गया, ये भी नल हो गया, ये भी नल हो गया, तो हमारे पास में कितने एज मिल जाएंगे, 2 ए मिनिमम मिल जाएंगे, क्लियर, यही तो मीनिंग है, ओके। अब बचा हुआ पार्ट हमारे पास में क्या बचा हुआ है, यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पहले भी तो कुछ आ सकता है, तो वो क्या चीज आ सकती है आपके पास में, अब बी नहीं आ सॉरी आपके पास में ए नहीं आ सकता है, अब हमारे पास में केवल क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, बी आ सकता है, या बी के कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास में इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मॉड डब्ल्यू ए इक्वल टू 0 मॉड 2, तो 0 मॉड 2 का मतलब क्या होगा, आपके पास में या तो 0 होगा, या आपके पास में कितने अंदर ए हो सकते हैं, 1 और 2, तभी आपके पास में क्या होगा, मॉड 2 हमेशा 0 मिलेगा, 2 4 6 8 कुछ भी आप निकालोगे तो मॉड वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी, राइट। तो आपने 2 ए का कॉम्बिनेशन ले लिया या फिर इसका एस्ट्रिक ले लिया। अब रिमेनिंग स्ट्रिंग्स क्या है, इसके पहले कोई भी बी आ सकता है, क्योंकि अब हम ए नहीं जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब if you write it down a plus b का whole asterisk, so it means a is also considered, so if you considered a, तो यहाँ पे कितने a हो जाएंगे, 3a, और तब आप मॉड निकालोगे तो 0 नहीं मिलेगा, is that clear, right or wrong? यस सर। कोई भी ऐसा है जिसको ये चीज नहीं क्लियर हुई है बेटा, बी एस्ट्रिक क्यों ऐड किया स्टार्टिंग में? बी एस्ट्रिक क्यों ऐड किया, ओके, बी एस्ट्रिक इसलिए ऐड किया, हमारे पास में स्ट्रिंग हो सकता है, ये भी तो हो सकती है बी ए बी, राइट, ये स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर आपके पास में कई सारे बी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बी। तो अगर हम इस बी एस्ट्रिक को ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास में ये स्ट्रिंग कैसे सेटिस्फाई होगी, आप मुझे बताओ। तो एक पहले भी तो बी एस टी लिखा ही है। आके अगर हम इस बी एस्ट्रिक की बात करें, चलो इसका मीनिंग समझना है, इस बी एस्ट्रिक से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, बी ए, राइट, अगर हमने इस एस्ट्रिक की वैल्यू को 1 काउंट कर लिया, ठीक है, बी ए बी, राइट, ए बी, अभी हमने सारी वैल्यूज को आपके पास में 1 1 काउंट किया, तो हमारे पास में ये बी कितना मिल गया, 1। अब ये जो पूरा पार्ट है ये किसके कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, इसके, यानी यहाँ पे अगर हम वैल्यू 1 लेंगे तो ये पूरे पार्ट की वैल्यू 1 होगी, राइट, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 लेंगे तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू 2 होगी। अब इसमें हमने बी एस्ट्रिक को काउंट किया या नहीं किया, राइट, तो सपोज अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 ले रहे हैं और हमने इस बी एस्ट्रिक को काउंट ही नहीं किया है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, ये चीज आपके पास में कितनी बार लिखी जाएगी, ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास में 2 टाइम्स लिखा जाएगा, यानी इसको हम ऐसे समझे, अगर हमने 1 की जगह इसको 2 बार यूज किया हुआ है तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास में, ओके, यही हुआ, राइट। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हम हो सकता है कि यहाँ पे b की वैल्यू ना लें और यहाँ पे हम b की वैल्यू ले लें, और हो सकता है हम किसी भी जगह b की वैल्यू ना लें, राइट। तो हमारे पास में सपोज अगर हमने पहली बार में b की वैल्यू नहीं ली, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, a, दूसरी बार में हमने b की वैल्यू ले ली, तीसरी बार में हमारे पास में a मिलेगा, चौथी बार में हमने b की वैल्यू नहीं ली ना, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हमने b की वैल्यू फर्स्ट टाइम में कंसीडर नहीं की, राइट, सेकेंड टाइम में भी हमने b की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, राइट, और थर्ड टाइम में हमने b की वैल्यू को कंसीडर कर लिया।
अब आपके पास में स्ट्रिंग क्या मिली, केवल ए बी ट्रिपल ए बी, यही तो मिली। टोटल कितने ए मिले, तो आपने मॉड की वैल्यू तो सेटिस्फाई करा ली, लेकिन अब आपके पास में ये स्ट्रिंग में नंबर ऑफ बीस कैसे आएंगे। पहले अगर हमें ए के पहले बी चाहिए, राइट, और कई सारे बीस चाहिए, तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसलिए बी एस्ट्रिक को और यूज कर लेंगे। क्लियर, तो मीनिंग सर क्लियर है लास्ट बेटा। में इसके बाद भी कुछ आ सकता है। इसके बाद भी कुछ आ सकता है, इसके बाद में हमारे पास में बी आ सकते हैं, तो बी की पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ ले ली ना, बी एस्ट्रिक की, राइट। और यहाँ पे हमने होल एस्ट्रिक लगाया, तो एट द एंड हमें क्या मिल रहा है, बी एस्ट्रिक मिल रहा है, तो हमारे पास में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कवर अप हो जाएंगे, ओके। राइट। और इस एक्सप्रेशन को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। हम अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं, या तो बी एस्ट्रिक हो, या फिर प्लस बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक। आप अपनी कॉपी पे लिखो फटाफट जो एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूँ, फिर इसको इवेलुएट करो, राइट। या तो हम बी एस्ट्रिक लिख सकते हैं, नहीं एक मिनट, ओके, मॉड वैल्यू के लिए बात हो रही है, ओके। तो हम जो आपको एक्सप्रेशन बोल रहे हैं वो होगा आपके पास में एस्ट्रिक, ओके, जस्ट अ मिनट, मॉड डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 मॉड 3। कितने लोग मुझे इसका एक्सप्रेशन लिख के दे सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मॉड रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यही लिखा हुआ है, मॉड ए इक्वल टू 1 mod 3, okay, this is okay, right। so इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, क्या एक्सप्रेशन आएगा। अभी हम लोगों ने मॉड 2 का एक्सप्रेशन बनाया था, तो पहले मॉड 3 का एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लो। सर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का प्लस होल क्यों लगा रहे हो बेटा, प्लस की क्या सर, रिक्वायर, हमने ए हमने बाहर एक करेक्टर दिया हुआ है ए, तो हमें ए की काउंटिंग को ध्यान में रखना है, और उसके साथ में नंबर ऑफ एज नहीं आ सकते हैं। तो ए प्लस बी तब आता जब आपने यहाँ पे ए या बी को स्पेसिफाई नहीं किया होता, राइट। क्लियर है चीज। अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1 मॉड 3, तो आपने करेक्ट आंसर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। नाउ अब आंसर करो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 0 मॉड 3 समझा था, राइट, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ओके, सो मेरे को कुछ लोगों ने आंसर सेंड किए हैं। ओके, फर्स्ट अरुण, आई होप आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन एक पार्ट मिसिंग है। अरुण, इंटरेक्ट विद मी, बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक और यस सर, लास्ट में एस्ट्रिक लगाना भूल गया सर। बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक लगेगा, Yes, sir. राइट। Yes, निशांत बेटा, आपका आंसर ए प्लस बी क्यों लगाया है निशांत। अभी हम कंटिन्यूअसली इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि हम जब स्पेसिफिक सिंबल्स की बात करते हैं मॉड के साथ में, राइट, तो फिर हम ए बी के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, ए प्लस बी नहीं लगाते हैं। फिर हमें ए बी के लिए कॉन्शियस होना है, आइदर ए काम करेगा या बी काम करेगा। अमित, आपने स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका गड़बड़ है, आपने बी को यूज किया हुआ, उसके पहले का पार्ट गड़बड़ है। रिमेनिंग पार्ट आपने करेक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। फर्स्ट वाले पार्ट पे फोकस करो जहाँ पे आपने सिंपल बी लिखा हुआ है, राइट। चलो इस एक्सप्रेशन, वहाँ पे ए तो लिख नहीं सकते हैं, नहीं वहां पे ए तो लिखोगे, ए लिखोगे बेटा। देखो अब इसका एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, ओके, आप समझने की भी कोशिश करना। पहले तो हमारे पास में हमें मॉड 3, राइट, सो मॉड 3 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मॉड 3 सबको क्लियर है, तो हम मॉड 3 को कॉपी एंड पेस्ट कर दें, राइट। ये हमारे पास में किसका सोल्यूशन है, मॉड 3 का। क्लियर, ये सबको क्लियर था, ओके। अब इसके पहले हमारे पास में 1 मॉड 3 लिखा हुआ है। सर मॉड 2 का होगा ना फिर। अच्छा, एक और ही रहेगा ओके तब ओके mod ओके 3 ओके, एक और ऐड करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे पास में हम ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ए बी एस टी, ठीक है। अब करेक्ट है ना, मॉड 3 के लिए करेक्ट हो गया भाई, ठीक। अब 1 लाना है, सो 1 किसके रेफरेंस में बात हो रहा है, ए के रेफरेंस में, यानी एक ए बाहर होना चाहिए। अब इस ए के आगे पीछे क्या हो सकता है, बी हो सकता है, तो बी एस्ट्रिक, ठीक है, और बी एस्ट्रिक, राइट। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर ए
सॉरी a इक्वल टू 1 mod 3, राइट? मीनिंग क्लियर हुआ बेटा? देखो mod 3 तो आपने सिंपल बना दिया, mod 3 के बाद में आपको 1 चाहिए, तो आपके पास में क्या है, mod 3 में आपको हमेशा 1 चाहिए, तो अगर 3 a होंगे तो हमेशा mod 3 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आपको एक a ज्यादा चाहिए, तो आपने एक a को बाहर ऐड ऑन कर लिया, और उस a के साथ में आपके पास में क्या हो सकता है, कितने भी b हो सकते हैं। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन बोलें, इसी में हम 2 mod 3 लिख दें, राइट, 1 की जगह 2 mod 3 लिख दें, तो कितने लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या चेंज करोगे? 2 mod 3, बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, राइट। तो अब सबको समझ में आ रहा है, मॉड का मीनिंग समझना, जो मैथमेटिकली हम लोग मॉड सॉल्व करते हैं वही चीज है, यहाँ पे केवल उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है कि जैसे आपने 1 mod 3 बोला है, तो हमारे पास में ए बी, राइट, अगर हम यहाँ पे सिंबल नहीं यूज करें, ठीक है, तो हम ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं। इफ वी टॉकिंग अबाउट द सिंबल पॉइंट ऑफ व्यू, सो अगर हमने ए लिखा है या बी लिखा है, तो अब हम उन पर्टिकुलर सिंबल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर 3 ए आएंगे और हम mod 3 परफॉर्म करेंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0, राइट। तो इट मींस हमें क्या चाहिए, 4 ए चाहिए, तो हमने mod 3 का तो फॉर्मूला हमें पता था, हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब इस mod 3 के साथ में हम अगर हमें 1 चाहिए, तो एक ए बाहर लिख दें, तो अब हमारे पास में जब भी हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे mod 3 के, तो हमें 3, 6, 9, 12 यही मिलेंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और उसके पहले हमारे पास में हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करें, उसके साथ में एक एडिशनल ए जोड़ दें, तो हमारी काउंटिंग क्या होगी, हमेशा एक ज्यादा होगी। जैसे 3 में है, एक ए जोड़ा 4 मिला, 6 में है, एक ए जोड़ा 7 मिला, राइट, 9 में एक ए जोड़ा 10 मिला, राइट। सो हर केस में हमारे पास में हमेशा 1 रिमाइंडर बचा रहेगा, यानी एक ए बचा रहेगा। सो दिस इज अ concept of philosophy how to deal with 1 mod 3, 2 mod 3, right, or 0 mod 3, 0 mod 2, right, clear? मीनिंग क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? यस या नो? नो सर। ओके, ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अभी तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात हो रही थी, ओके। अब ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपके पास में नॉर्मल अगर कोई भी मशीन गिविंग है, राइट, सो उस मशीन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस डिजाइन करते हैं, राइट। तो हमारे पास में गिविंग है Q0, ओके, इस पे हमने A इनपुट प्रोवाइड किया, ओके। नाउ फिर हमने Q1 दिया हुआ है, और फिर हमारे पास में B इनपुट है, ओके, क्लियर? नो, मशीन विजिबल है बेटा? यस सर ओके, विजिबल है। ओके। सो अब अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या चीज बेटा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। हेडिंग क्या है? हेडिंग डालो मशीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन। मशीन की जगह आप लिख लो फाइनाइट स्टेट मशीन टू, या जो हेडिंग डाली है करेक्ट है, मशीन टू क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। अब मशीन हमारे पास में NFA DFA कोई भी हो सकती है, राइट। तो हमारे पास में हमने सिंपल मशीन इसलिए कीवर्ड लिखवाया, मशीन टू रेगुलर एक्सप्रेशन, या FA लिख लो, फाइनाइट ऑटोमेटा, मशीन के ब्रैकेट में लिख लो FA, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इस मशीन को अगर डिजाइन करें, तो इस मशीन को डिजाइन करने का मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास में Q0 पे A इनपुट है और फिर B इनपुट है। अब हम लोग पुराने वाले पार्ट में जाते हैं, जब हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाना सीखा था, DFA बनाना सीखा था। कैसे सीखा था कि हमारे पास में कोई भी ऐसी मशीन बनाओ जो B से एंड हो रही हो या AB से एंड हो रही हो, क्लियर? यही एक्सप्रेशंस बनाए थे हम लोगों ने, राइट या रॉन्ग? राइट। सो अब अगर हम उन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में समझें, कि अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो गिविंग है, राइट, ये किस पर्टिकुलर मशीन का पार्ट, ये मशीन किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, आप मुझे बताओ। AB नहीं, AB तो हो गया, बी से एंड हो रहा है, और ऐसा ए से स्टार्ट, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है सर। ए बी से एंड हो रहा। हाँ, अब ये बोल सकते हो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कि स्टार्ट विथ A है और एंड विथ B है। अब जरा लिखो, स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ B, ठीक है।
इसके लिए जरा एक डीएफए डिजाइन करो, सारे लोग डिजाइन करोगे, क्या बनेगा? सर यही बनेगा। सर यही बनेगा, लेकिन सर Q0 पे अगर बी इनपुट देंगे तो डेड स्टेट मिल जाएगा। हाँ, डेड स्टेट। अभी हम केवल मिनिमम स्टेट मशीन्स की बात करते हैं, ठीक है, हम कंप्लीट डीएफए की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे इसीलिए हमने मशीन की वर्ड लिखा हुआ था। सो अगर हम आपसे बोलते हैं स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी, राइट, सो स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी का आपने यही तो मशीन बनाओगे। क्लियर? Yes, sir. अब अगर हम इसके रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने की बात करें तो देखो यहाँ पे कहीं लूप लगा हुआ है क्या? यहाँ पे कहीं लूप है, यहाँ पे कहीं लूप है, नहीं, किसी sir. भी जगह कहीं लूपिंग No, यूज नहीं sir. होगी। नो सर। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास में? ए बी, राइट, स्मॉल ए, सॉरी, ये इसका क्या होगा? रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? राइट? Yes, sir. अब अगर हम आपको इसी तरीके से एक और मशीन डिजाइन करके देते हैं, क्लियर, आप मुझे बताओ कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, सोच के आंसर देना। क्लियर? पहले मशीन यहाँ डिजाइन कर देते हैं, फिर आपको विजिबल करते हैं, आपके लिए सिंपल थोड़ा सा देखने में ईज हो जाएगा। Q0 फॉर ए इनपुट, ओके, देन Q1 एंड देन आपके पास में बी इनपुट। ओके, विजिबल है बेटा? ए बी ए कैसे हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो सर सारे ए लोग। स्टार बी, A ए स्टार B, बी। ए स्टार बी, ओके, सर A ये plus स्टार्ट B एंड plus एंड B. विथ ए है। ए प्लस बी होगा सर। ए प्लस बी। दो लोगों ने सही आंसर दिया है मुझे, ए प्लस बी, राइट। कितने लोगों को इसमें ए प्लस बी में चीजें कंफ्यूज कर रही हैं? या तो ए आएगा या बी आएगा, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। या तो ए आएगा या तो बी आएगा, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए प्लस बी। मशीन ए से स्टार्ट भी हो सकती है, ए से एंड भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम केवल क्या बोलेंगे? मशीन ए और बी के लिए आपके पास में वर्क कर रही है, आइदर ए के लिए और बी के लिए। या तो वो ए पे आपके पास में फाइनल स्टेट पे पहुंचेगी या बी पे फाइनल स्टेट पे पहुंचेगी। तो इट मींस मशीन एक्सेप्ट आइदर ए और बी, राइट। सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? अगर हम जनरल मशीन की बात करें तो हमारे पास में क्या होगा? मशीन आइदर एक्सेप्ट ए और बी। तो हम इस चीज को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी। क्लियर है चीज? राइट? किसी को प्रॉब्लम है इन दोनों पार्ट में? इंटेक्ट विथ मी? No, sir. ओके, चलो नेक्स्ट जो हम आपको फिगर डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं, इसके बाद आप मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, आराम से सोच के बताना, क्योंकि अब हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, केवल हमें रिकॉल करनी है चीजों को और समझना है इन डेप्थ। विजिबल है बेटा? सर ए बी एस्ट्रिक प्लस सी। ए बी एस्ट्रिक सी, ओके, राइट। कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जिनको ये चीज नहीं समझ में आई है? कोई ऐसा हो जिसको ये चीज नहीं समझ में आई हो? सर ये समझा दीजिए। ओके, चलो देखो बेटा, आपके पास में यहाँ पे क्या आ रहा है? ए इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो ए इनपुट का मीनिंग क्या हुआ? आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में ए लिखना है, ठीक है। इसके बाद कितने भी बी आ सकते हैं। बी का लूपिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आपने सेल्फ लूप लगाया है, इट मींस बी कंटेन कर सकता है और बी नहीं भी कंटेन कर सकता है। क्लियर? और आपके पास में क्या है? लास्ट सिंबल क्या है? सी, राइट। सो अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि इसमें इनपुट सेट क्या है, कितने लोग मुझे आंसर कर सकते हो? इसमें ए इनपुट बी सेट सी क्या है? ए और सी। ए बी सी सर। AC सर। क्लियर? बी सी, क्लियर? यहाँ पे अभी तक हम लोग कितने इनपुट सेट की बात कर रहे थे? ए बी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे कितने इनपुट सेट हो गए? ए बी सी। तो अब हम आपसे बोल सकते हैं कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ए से स्टार्ट होगी और सी पे एंड होगी, तो इसके बीच में क्या आ सकता है? बी आ सकता है। क्लियर? तो अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बी एस्ट्रिक सी। और सी। अब किसी को डाउट है? यस या नो बेटा? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो, ए बी एस्ट्रिक सी।
ए बी एस्ट्रिक सी। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा बेटा, राइट, ए बी एस्ट्रिक सी। क्लियर। नाउ अब हम एक और मशीन डिजाइन करते हैं, उसका आंसर मुझे आप बताना। Q0 that is initial and final, that is A, right, that is B, okay, and now this is Q। okay, अब सोच के मुझे इसका आंसर देना, क्या आएगा आउटपुट। विजिबल है कंप्लीट मशीन? नहीं सर, दिखाया था ऊपर की। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। सर थोड़ा नीचे स्लाइड करिए। हाँ, अब आ गया बेटा। ए बी का होल एस्ट्रिक सर। क्या चीज बेटा, फिर से बोलो। ए बी प्लस, ए बी प्लस, मतलब ए बी होल प्लस। ए बी होल प्लस। होल प्लस क्यों बोला आपने? ए बी होल क्योंकि प्लस सर नल स्टेट तो आएगा नहीं इसमें कभी। क्यों नहीं आएगा बेटा? देखो इनिशियल स्टेट क्या है? क्यू नॉट, वही फाइनल है। तो फिर इट मींस क्या हो गया? नल स्टेट आ गई ना। यस अगर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, इट मींस आप बिना कुछ इनपुट दिए हुए भी फाइनल पे पहुंच गए ना। यस सर, ए बी का होल नल स्टेट ना, राइट। तो ए बी का होल स्टिक सर। ए बी का होल करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास में? ए प्लस बी का होल राइट। यहाँ पे पार्ट क्लियर होगा बेटा। ए प्लस बी का होल स्टिक क्यों आ रहा है आपके पास में? क्लियर है चीज? ए प्लस बी का होल स्टिक, राइट। ये सर इसका एक बार बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ओके देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास में Q0 इनिशियल और फाइनल है। अगर आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया तब भी हमारे पास में नल पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो मशीन आपके पास में ए इनपुट पे कहाँ जा रही है? Q1 पे। क्या ये फाइनल स्टेट है? नहीं। Q1 से अगर हम बी इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ पे आ रही है? फाइनल स्टेट पे आ रही है। सो इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं आपके पास में? अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ठीक है, तो ए और बी के एस्टिक, यानी अगर हमारे पास में हम फाइनल स्टेट पे मशीन पे कब पहुंच रहे हैं, या तो हम आपके पास में क्या दे रहे हैं जस्ट, ठीक है, या तो हमारे पास में हम कुछ भी नहीं दें या फिर हम ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन दें, तभी हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं? इस मशीन की फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो देखो ए बी का होल एस्टिक से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर हमने कुछ भी नहीं दिया ए बी में से तो हम कहाँ पे? इनिशियल स्टेट पे, और यही फाइनल स्टेट है। अगर हमने ए बी दिया तो ए एंड बी हम फाइनल्स पे आ गए। फिर से हमने ए बी दिया तो हमारे पास में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी पे हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं? फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ये पार्ट तो क्लियर फिर हुआ? आपने ए प्लस बी का होल नहीं बेटा, ए प्लस बी नहीं है, वो गलत लिखा हुआ था इसीलिए काटा मैंने, राइट। प्लस का सिंबल अभी हम लोग समझ चुके हैं। प्लस कैसे यूज होता है? जब एक पर्टिकुलर उस पे सेम डायरेक्शन में दो सिंबल्स आपके पास में फ्लो करें, राइट। यहाँ पे क्या दो सिंबल फ्लो कर रहे हैं? नहीं सर, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में है ना, राइट। सो इट मींस आपके पास में हम यहाँ पे ए प्लस बी को यूज नहीं करेंगे। क्लियर। नाउ चलो अब एक और मशीन यूज करते हैं हमारे पास में। इस मशीन को अब आप आराम से सोच के मुझे आंसर देना जब मैं ड्रॉ कर लूं। इसके बाद Q0, राइट, इनपुट Q1, चलो अब बताओ। सर ए बी ए एस्टिक। आराम से सोच के बेटा, ठीक है, देयर इज नो हरी, टेक योर टाइम। सर ए एस्ट्रिक बी। ए सर ए एस्ट्रिक बी ए एस्ट्रिक। हाँ ए एस्ट्रिक बी बी एस्ट्रिक नहीं, जरा सेट लिखो बेटा। जितने लोग मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो जरा सेट लिखो। इस पे मशीन पे कौन कौन से सेट सेटिस्फाई होंगे? सर ए बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक। नहीं बेटा देखो, ध्यान से समझना। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं बट आप थोड़ा सा जल्दी कर रहे हो। ए सेट इस पे सेटिस्फाई होगा, ए पे फाइनल मशीन पहुंच रही है, राइट। इसके अलावा फाइनल ए बी ए प्लस नहीं, फिर से समझो। ए राइट, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट क्या मिलेगा? ए बी ए के सारे कॉम्बिनेशंस, राइट। अब अगर हम इस पार्ट को समझे तो हमारे पास में क्या चीज हो रही है? देखो ए हमारे पास में क्या है? कॉमन है, और बी ए का पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। यानी ए से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं और बी ए का कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालते हो?
इसका मीनिंग समझना, पहले जो मशीन दी हुई है उससे जो आप सेट बना रहे हो वो सेट लिखो। इस सेट से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मशीन किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो देखो ए पे फाइनल स्टेट पहुंच रही है तो हमने ए का कॉमन निकाल लिया, तो अब अंदर क्या बचा, बी ए के कॉम्बिनेशंस बचेंगे। आप नेक्स्ट सेट लिखो, तो देखो ए बी ए मिलेगा, फिर लिखोगे ए बी ए कई बार मिलेगा, राइट। सर सो सर तो फिर इसको ये नहीं लिख सकते ए बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक? ए फिर से बोलो बेटा, ए बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक। अब देखो आप अपनी बात को कंट्राडिक्टरी कैसे कर रहे हो। आपने बोला कि हमारे पास में एक बार ए है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास में क्या आया, बी, फिर बी आ गया, अब फिर ए आ गया। अब आप मुझे बताओ इस मशीन पे 2 बी आप कैसे सेटिस्फाई करो? सर नहीं होगा सर, 2 और इसको सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस ए बी एस्ट्रिक। एक मिनट बेटा, आपका ये प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, क्या बोल रहा हूँ फिर से बोलो। ए प्लस ए प्लस ए बी ए एस्ट्रिक, ए बी ए सर, ए बी ए का एस्ट्रिक। होल एस्ट्रिक, नहीं सर, ठीक सिर्फ है, बी ए पर एस्ट्रिक। फिर से बोलो बेटा, ए प्लस राइट ए बी ए हाँ सर, ए बी ए का एस्ट्रिक मतलब सर इसका होल एस्ट्रिक, इसका बोल रहा हो जी। या पूरे का होल एस्ट्रिक बोल रहा हो? सर ए बी ए इसका का एस्ट्रिक बोल रहे हैं। इसका जी सर। इस बार यस Okay. सर, इसी का। ओके तो आप ये एक्सप्रेशन बोल रहे हो ए प्लस ए बी ए का होल एस्ट्रिक। अब ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या है। आप ए बी ए का होल एस्ट्रिक बोल रहे हो तो इट मींस आप बोल रहे हो या तो ए आ सकता है या फिर ये आ सकता है। मीनिंग समझना ध्यान से। अब इस चीज को, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है जिसको आप समझ रहे हो अभी। ए हो सकता है या ए बी ए, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट हो सकता है। आपकी मशीन में क्या ऐसा है? आपकी मशीन में तो दोनों पार्ट यूज हो रहे हैं ना। देखो ए से भी इनपुट पे पहुंच रहा है आउटपुट पे, और ए बी ए से भी आउटपुट पे पहुंच रहा है। मीनिंग क्लियर हो रहा है? तो आप क्या करोगे, प्लस सिंबल यूज नहीं कर पाओगे। प्लस सिंबल यूज करने का मतलब क्या था, आपके पास में एक सेपरेट ए था और रिमेनिंग पार्ट में आपने इस पूरे पार्ट को ए बी ए को लिखा होता, तब ये एक्सप्रेशन करेक्ट होता। जस्ट लाइक दिस, ए से हमारे पास में ये पहुंच रहा है और फिर हमने यहाँ पे एक ए बी ए बनाया होता पूरा, तब आपके पास में क्या होता, तब ये एक्सप्रेशन आपके पास में ट्रू होता। क्लियर? ठीक सर, यस सर। राइट। सो हमने आपको बताया इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले सेट लिख लो। तो जब आप सेट लिखते हो तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाता है कि हमारे पास में एक्सप्रेशन किस तरीके का डिजाइन होगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट मशीन। हम एक और मशीन आपके पास में ड्रॉ करते हैं, राइट, फिर आपको विजिबल करते हैं Q0 A। अब आपके साथ में कॉपी पेन का मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि अगर हम स्लाइड पे यूज करेंगे तो आधे से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी लॉस होती है। राइट, चलो विजिबल है बेटा? नहीं, लेफ्ट पोर्शन में आ गया बेटा? थोड़ा सा सर नीचे और कर सर थोड़ा सा नीचे स्लाइड करिए। ओके, सर हम लोग का नीचे, आपका ऊपर थोड़ा सा। हाँ ठीक है बेटा, अब सही है। Q0 पे है, राइट, ए इनपुट है और यहाँ पे हमारे पास में बी है, ये सी ले लो। ठीक है, क्लियर? सर ए बी एस्ट्रिक प्लस सी। ए बी एस्ट्रिक सी ए जरा सेट लिखो, सेट लिखो आराम से, फिर मुझे बताओ। सारे लोग सेट लिखो और फिर इसका आंसर डिजाइन। सर ए बी एस्टिक सी ए बी एस्टिक। ओके, हाँ अब बोलो बेटा क्या आउटपुट आ रहा है? ए बी एस्टिक सी ए बी एस्टिक। ओके, सर ए ब्रैकेट में बी एस्ट्रिक सी ए, फिर उसका पूरा का एस्ट्रिक। थोड़ा सा करेक्ट करो बेटा, ऑलमोस्ट आंसर करेक्ट है आपके पास में। आप सर, कंफ्यूज, हाँ अब ए एक बी चीज, एस्ट्रिक सी ए का नहीं। होल ऑफ एस्ट्रिक फिर बी एस्ट्रिक। अच्छा अभी लास्ट जितने 2 लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट किया हुआ है, फिर से समझना। आप क्या कर रहे हो, बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक लगा रहे हो, राइट। और ये चीज अभी हम लोग सुबह डिस्कस कर चुके हैं, ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है?
राइट। तो आप अगेन वही फॉल्ट क्यों कर रहे हो? अगर सेल्फ लूप लगा है इट्स ओके, तो आप क्या बोल रहे हो, या तो बी का सेल्फ लूप हो सकता है या सी ए का सेल्फ लूप हो सकता है, यही तो कहने का मीनिंग है। तो आप बी एस्टिक प्लस सी ए का एस्टिक का होल एस्टिक क्यों लगा रहे हो? इसका मीनिंग क्या होगा? बी प्लस सी ए का ही तो होल एस्टिक होगा। देखो फिर से समझना है इस चीज को, ऑलमोस्ट आप आंसर पे पहुंच गए हो। देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, केवल ए आ सकता है, ए से आप फाइनल स्टेट पे केवल आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल एक ए लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब ए के अलावा हमारे पास में आउटपुट आने की क्या कंडीशंस है, अब ध्यान से समझना है इस चीज को। राइट, सी ए बेटा उल्टा लिख दिया है, बी एस्टिक की जरूरत नहीं है बेटा। यस, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। राइट, ए आपने लिख दिया। अब ए के बाद आपके पास में क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है उनको देखते हैं। ए से आप फाइनल स्टेट पे आ गए। अगर यहाँ पे हमें बी मिलता है तब भी हम फाइनल स्टेट पे हैं। क्लियर? तो हमने मान लिया अगर हम इसके आगे बी यूज कर लेते हैं तो हम कहाँ पे होंगे, फाइनल स्टेट पे होंगे। राइट, तो अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन बी के बाद हमारे पास अगर सी आउटपुट आता है तो स्टेट चेंज हो गई। अब ध्यान देखना, यहां से हम फाइनल स्टेट से बाहर आ गए, यानी अगर बी के बाद हमें सी इनपुट मिलता है तो हम कहाँ पे आ गए, बाहर आ गए। क्लियर? बी के बाद में अगर हमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। यानी इस स्टेट से अगर हमें सी इनपुट मिल रहा है तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, Q0 पे। और सी से फिर अगर हमें ए मिल रहा है तो हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे। तो अगर हम आपसे बोले या तो बी मिले, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो बी मिले या हमारे पास में क्या मिले, सी ए मिले। क्लियर? और इसका होल स्टेट। अब देखो इसका मीनिंग समझना, ये चीज आपने कैसे निकाली, या तो बी मिले या बी के सारे कॉम्बिनेशन। तो आपने क्या लिख लिया, बी एस्टिक मान लिया। सी ए मिले, और सी ए कितनी बार मिल सकता है, अगर हम इस जगह पे पहुंचे हैं तो हमारे पास में कितनी बार भी हम सी ए को रोटेट कर सकते हैं। राइट, पहली बार में सी ए मिला, फिर दूसरी बार में सी ए मिला, फिर तीसरी बार में। क्यों? क्योंकि इट सेल्फ में एक साइकिल प्रोड्यूस करता है। एक तो सेल्फ लूप होता है और दूसरा क्या है, ये साइकिल पार्ट है। राइट, एसी का ये क्या है, साइकिल पार्ट है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक मशीन डिजाइन करी थी, याद आया, जहाँ पे हमने ए बी का होल स्टिक, राइट, ए बी का होल स्टिक यूज किया था। हाँ करो। सर प्लस क्यों लगाया सर? प्लस में तो ये है ना कि मतलब दोनों भी तो आ सकते हैं ना, बी सी ए। बेटा प्लस का मीनिंग क्या होता है, अब मुझे दो दो मतलब प्लस का दो मीनिंग या तो बी एलिमेंट आएगा या सी ए आएगा। राइट, मीनिंग समझ में आ रहा है? और इसका Yes, एस्टिक लगाने का मतलब है बी और सी ए के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक ए स्ट्रिंग ए बी सी ए। राइट, ये इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। यस सर। क्लियर है चीज? यस सर। अब पूरी क्लास लास्ट में, हाँ सर पूरी लास्ट क्लास में में भी एस्ट्रिक भी तो लगेगा लास्ट में बी एस्टिक क्यों लगेगा बेटा, आप मुझे सर बताओ। बी इसके एस्टिक बाद। इसके क्यों बाद सर बी ए एस्टिक क्यों, इसके सर बाद बी ए एस्टिक क्यों? हाँ बताओ ए बेटा। बी सी ए बी, ये अगर स्ट्रिंग है तो कैसे सेटिस्फाइड है? फिर से बोलो बेटा, स्ट्रिंग ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। ओके बी चलो देखो ये स्ट्रिंग कैसे सेटिस्फाई होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। ए मिला, ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखा हुआ, बी प्लस सी का सी ए का होल एस्टिक। तो आपको पहली बार में आपने बी कंसीडर कर लिया, सेकेंड टाइम में सी ए कंसीडर कर लिया। ओके क्लियर? अब इसका होल एस्टिक है तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, फिर से बी कंसीडर कर सकते हैं ना। यस सर। क्लियर है चीज? यस ओके Yes, अब तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है? सर क्लियर तो है, हर बार लगता है कर लेंगे, पर सर फिर कर नहीं पाते हैं। नहीं बेटा, अभी सर। आपने 3 या 4 मशीन यूज करी है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, वी आर बिगिनर्स, वी आर नॉट एक्सपर्ट। ठीक है, सो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। राइट, और ये आपके पास में एक तरीके के रीजनिंग या आपके पास में गेम ही है। राइट, जैसे आप पजल्स गेम सोल्व करते हो वैसा ही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक और हम आपको मशीन दे रहे सर हैं। सर हाँ या सर टेल जो मी मैंने बेटा। बताया सर, वो किस तरह किस कंडीशन किस पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा सर, ये अभी बता रहा हूँ, एक मिनट, जो आप बता रहे थे उसमें क्या है, एक जस्ट अ मिनट बेटा, मैं ये मशीन डिजाइन कर लूं, देन आई गिव योर आंसर। Q1 ओके राइट, मशीन विजिबल हो रही है? मशीन विजिबल हो रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके चलो
अब इस चीज को समझते हैं। अभी जो आपने बोला हुआ था उसमें आपने एक्सप्रेशन में यहाँ पे बी एस्टिक लगाया था, राइट बेटा? तो बी एस्टिक यहाँ पे देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखें, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, बी एस्टिक प्लस सी ए का होल एस्टिक प्लस एस्टिक, राइट? दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट? बी एस्टिक का होल एस्टिक लगने का मतलब क्या होगा कि आप बी एस्टिक की बात कर रहे हो। अगर हम आपसे बोले ए एस्टिक का होल एस्टिक, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ए का मतलब एक क्या एस्टिक बताया? हो, राइट? मीनिंग समझ में आ रहा है? तो जब आपने बोला कि बी का प्लस सी ए का होल एस्टिक, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी एस्टिक प्लस सी ए का होल एस्टिक, यही तो मिलेगा। यस सर। ओके, अभी हमने एक पार्ट आपको मुझसे बोला हुआ था, अभी हम आइडेंटिटीज आपको फिर से क्लियर करेंगे, क्योंकि जितने भी कंफ्यूजन है वो आइडेंटिटीज को लेके हो रहे हैं। तो हम लोग एक लेक्चर अभी आइडेंटिटीज को डिवोट करेंगे आज के बाद, ठीक है? आज मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट होने देते हैं, इसके बाद हम लोग इनको सॉल्व करेंगे जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। 50-60% आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो थोड़ी बहुत चीजें होती है 20-30% वो एक बार फिर से हम लोग लीमा और आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं छोटे छोटे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, ठीक है? और इस पे सेल्फ लूप भी लगा हुआ है ए का। तो सबको ये तो क्लियर हो गया कि ए एस्टिक देखो कैसे बनाते हैं इस ए प्लस, हाँ ये करेक्ट है बेटा। किसने मुझे, अमित आपका आंसर करेक्ट है बेटा, राइट? ए प्लस बी सी का होल एस्टिक, राइट? अब देखो इसी चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ए प्लस बी सी का होल एस्टिक, और इसी की जगह हम आप एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे हम आपसे बोलते हैं ना कि डायरेक्टली यूज करो। तो आपने बोला है ए एस्टिक, ए का सेल्फ लूप लगा हुआ है, ठीक है? ए एस्टिक। अब यहाँ से हमारे पास में एक और इनपुट है, यानी हम प्लस में पार्ट करेंगे। प्लस में हमारे पास में हम क्या यूज कर सकते हैं? बी एंड सी। बी सी कई बार आ रहा है, तो हम बी सी का होल एस्टिक लिख सकते हैं। क्लियर? और अब आपके पास में बी सी के होल एस्टिक के बाद में यहाँ पे एक और ऐसी स्ट्रिंग है जहां पे हम इनिशियल पे कुछ भी इनपुट नहीं दें तब भी हमें क्या मिलेगा? नल कैरेक्टर मिलेगा। क्लियर? सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ऊपर वाला रेगुलर एक्सप्रेशन दोनों आपके पास में क्या है? सेम है। अब जो अभी आप डाउट पूछ रहे थे वही यहाँ पे आंसर आ गया। ए एस्टिक प्लस बी सी का होल एस्टिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए, यहाँ से एस्टिक हट जाएगा, यहाँ से एस्टिक हट जाएगा, यानी हम लोगों ने सुबह एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए एस्टिक प्लस बी एस्टिक का होल एस्टिक, राइट? इट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी का होल एस्टिक। क्लियर है चीज बेटा? यस सर। ओके, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सर हाँ, या टेल मी बेटा। सर इनिशियल स्टेट ही तो फाइनल स्टेट है, तो अगर कुछ ना भी हो तो भी तो हम लोग फाइनल स्टेट में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए तो हमने इसका होल देखो इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? एस्टिक, यानी इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? सर फिर ये यूजर डिफाइंड कहाँ है? यूजर डिफाइन तो है बेटा। देखो अगर हमने आपसे बोला कि कुछ भी इनपुट नहीं है तो क्या होगा? हम Q0 पे होंगे। अगर हमने इनमें से कुछ भी कंसीडर नहीं किया तो क्या होगा? 0 होगा ना, नल होगा। सर, तो हम Q0 लोग ये स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, ए एस्ट्रिक इनटू बी सी का होल ऑफ एस्ट्रिक, ए एस्टिक इनटू बी सी का होल ऑफ एस्ट्रिक। अब देखो बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब ध्यान से समझना जो आपका डाउट है, ठीक है? ए एस्टिक इनटू बी सी का एस्टिक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में हम आउटपुट स्टेट पे केवल ए से पहुंच सकते हैं ना, राइट या रॉन्ग? ए से पहुंच सकते हैं केवल। निकिता इंटरेक्ट कर रही है ना बेटा मेरे से? यस सर। हाँ निकिता, ए पे पहुंच सकते हैं, राइट? अब आप मुझे बताओ ए के अलावा भी तो हम यहाँ पे बी, दो डायरेक्शन है ना, Q0 से हम ए पे भी पहुंच सकते हैं और Q0 से हम बी पे भी पहुंच सकते हैं। जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन? एडिशन। मीनिंग क्लियर हुआ? एक पर्टिकुलर स्टेट पे आप अलग अलग इनपुट स्टेट्स पे पहुंच रहे हो, ठीक है, डिफरेंट आउटपुट पे, तो हम क्या लिखेंगे? ए एस्टिक पे। अब आपने जो कंडीशन मुझे दी हुई है इसका मीनिंग हुआ या तो ए होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो अगर हमने ए कंसीडर कर लिया तो ए मिलेगा, और अगर हमने बी और सी को कंसीडर कर लिया तो ए बी सी मिलेगा। स्ट्रिंग सेटिस्फाई हो गई ए, ठीक है, बी एंड सी, हम फाइनल पे आ गए। करेक्ट है आपके पास में नाउ। लेकिन अगर हम आपसे बोलते हैं ए, ठीक है, अब हमारे पास में हमने बी और सी की कंडीशन को लिया, बी सी एंड, ठीक है,
BC। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में मशीन में अगर हम केवल एक सिंगल ए को प्रोड्यूस कराएं, सिंगल ए, राइट, तो BC का हमारे पास में अगर हमने कोई भी वैल्यू ले ली तो हमारे पास में क्या होगा, ABC, राइट। इसका आपके पास में A पे भी आप जा सकते हो एंड फिर आप BC पे भी जा सकते हो। ओके, क्लियर है चीज, राइट। सो देखो यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे जो मशीन है वो आपके पास में क्या है, ABC के लिए ही हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्लियर। जबकि हमारी मशीन 3 डिफरेंट कंडीशंस पे सेटिस्फाई हो रही है और इसमें नल कंडीशंस पे भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये मशीन 3 तरीके से आउटपुट दे सकती है, या तो नल मिले, या A मिले, या फिर हमारे पास में क्या मिले, ABC मिले। ABC। अब ये 3 कंडीशन है आपके में, ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकती, मल्टीप्लिकेशन है ना, राइट। सो 3 डिफरेंट आउटपुट्स हैं, तो हम 3 डिफरेंट आउटपुट को कैसे कनेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ और कंडीशन। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। दिस मीनिंग क्लियर हुआ? सर आपकी वॉइस क्लियर है चीज बेटा? यस सर। यस सर, अभी आपकी क्लियर है वॉइस बेटा? ब्रेक हो रही है सर। अभी क्लियर है बेटा? यस अब क्लियर हुआ निकिता? मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो लास्ट मशीन डिजाइन करते हैं। क्लास की टाइमिंग कितने बजे खत्म होती है? सर 45। 11:45 पे। यस 2 क्लासेस थी ना? 39 में कर दीजिएगा, 10 मिनट का बायो ब्रेक निकल है। ओके, ठीक है बेटा। तो Q0 पे हमने B इनपुट दिया है, ओके, एंड A इनपुट दिया है, ठीक है। ये B है, ये D है, ओके। Q1 एंड C। ओके, विजिबल है बेटा स्क्रीन, है ना? अगर विजिबल है सॉल्व करो इसको। Solve this. क्लियर है बेटा? तुरंत मास्क लगाओ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब जो आपके पास में प्रॉब्लम गिविंग है, ओके, इसमें हमारे पास में सबसे पहला पार्ट तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए का लूप है, क्लियर, ओके। तो ए एस्टिक तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो हमने ए एस्टिक यूज कर दिया, क्लियर। अब देखो आपके पास में यहाँ पे ए एस्टिक का पार्ट हो गया। अब ए एस्टिक के बाद हमारे पास में नेक्स्ट इनपुट हमें फाइनल स्टेट कंडीशन पे पहुंचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, बी की रिक्वायरमेंट है ही, राइट। तो या तो हमें ए चाहिए या बी चाहिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो ये तो पार्ट हो गया ए एस्टिक बी, इतना पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं। अगर हम सी पे हैं तो सी एस्टिक से भी हम फाइनल कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, तो हमने लिख दिया सी, ठीक है। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं इसका मीनिंग समझाते हैं। सी हमने लिखा, लेकिन सी से हमारे पास में फिर से एक लूपिंग कंडीशन है, जिससे हम डी बी करते हुए आपके पास में डी से बी पे हम जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से फाइनल स्टेट मिल जाएगी, राइट, आइदर इंक्लूडिंग ए और नॉट, राइट। सो अब हमारे पास में अगर हम यहाँ पे प्लस करें तो हमारे पास में हमें पहला पार्ट क्या मिलेगा, डी मिलेगा, राइट। तो हमने डी लिख लिया, ओके। अब डी के बाद हमारे पास में अगर हम इस कंडीशन पे आए तो हमें ए इनपुट मिल सकता है ना, राइट। और ए का हमारे पास में लूप है तो हम यहाँ पे ए एस्टिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, तो हमने बी को यूज कर लिया। सो हम अब रिजल्टेंट पार्ट पे फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं मिलता है तब भी हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, क्लियर। तो ये इसका रेगुलर है। ए एस्ट्रिक को सर मैंने कंसीडर ही नहीं किया था, वापस आते टाइम वापस आने भूल पे गया। एक्चुअली क्या है, बिल्कुल हम बिगिनर्स पे ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो दैट इज
नॉट ट्रू इफ द कंडीशन इज ऑकर्ड DAB, अगर कोई एक स्ट्रिंग DAB आ जाती है तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ पे A का लूप भी लगाना पड़ेगा। सो A एस्टिक भी हमने इसीलिए बोला था, आप ऑलमोस्ट सोल्यूशन पे पहुंच गए हो, स्लाइटली थोड़ा बहुत आपके पास में प्रॉब्लम रहती है, तो जब हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, या टेल मी बेटा। सर Q0 पे A और B सर दो अलग अलग स्टेप पे जा रहे हैं, तो सर वहां पे प्लस नहीं होगा? Q0 पे A और B बेटा अलग अलग आने का मतलब समझना, आप में से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो A प्लस B और A B में। आपके फाइनल स्टेट पहुंचने पे क्या हम डायरेक्ट A से फाइनल स्टेट पहुंच सकते हैं? गिव मी द आंसर। नो नहीं सर, नहीं पहुंच सकते। अगर हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए? मिनिमम A और B चाहिए या केवल B चाहिए? हम राइट? यस सर। राइट हम ये नहीं बोल सकते कि हम A से भी पहुंच सकते हैं और B से भी पहुंच सकते हैं। पुरानी वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसमें क्या था, हम फाइनल स्टेट पे या तो A से पहुंच सकते हैं या फिर आपके पास में किससे पहुंच सकते हैं, B और CA से भी पहुंच सकते हैं। देखो पुरानी वाली मशीन क्या थी, ये थी राइट। यहाँ पे हम फाइनल स्टेट पे किससे पहुंच रहे हैं, या तो A से या फिर B से या फिर CA से, यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो जो आपने बीच में A एस्टिक लिखा है, हाँ बेटा, तो उसको अगर सिंगल A लिख देता? सिंगल ए लिखोगे बेटा तो आप ये मुझे बताओ कि अगर आपके पास में एक स्ट्रिंग होगी जहां पे DAAB सेटिस्फाई कराना होगा तो आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? और फिर यहाँ पे आपके पास में A का लूप लगा हुआ है, तो जब A का लूप लगा हुआ है तो हमें सिंगल A लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं बचता है। तो उसको पावर में एस्टिक तो है। हाँ पावर में एस्टिक है, तो लेकिन पावर में एस्टिक पूरे के पावर में एस्टिक है ना, इसके पूरे के पावर में एस्टिक है ना। डबल पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ यहाँ पे डबल पॉइंटर नहीं बोलोगे बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम इस पार्ट को BDA को एक पार्ट में कंसीडर कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है राइट, और इस पे A का सेल्फ लूप लगा है, इसलिए हमने एक, और फिर इस पूरी स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हम बोल रहे हैं ये हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए हमने इसके ऊपर एस्टेरिक सिंबल यानी क्लोजर का यूज किया होगा। ओके सर C पर क्यों नहीं लगाया एस्टेरिक? C पे एस्टेरिक क्यों नहीं लगाया हुआ है? देखो C पे हमने होल एस्टेरिक लगाया एस्टिक में तो हुआ है, जब C को कंसीडर करें तो अगर आप यहाँ पे एस्टिक C एस्टेरिक लिख दोगे तब भी सर कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। सर A पर भी तो सर आ जाएगा। देखो यहाँ पे C एस्टेरिक लिखोगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डाउट क्लियर किया था, C एस्टेरिक ठीक है का होल एस्टेरिक, इसका मीनिंग समझना राइट, A एस्टेरिक प्लस B एस्टेरिक का होल एस्टेरिक, इसका मीनिंग समझना। और अगर हम आपसे बोलते हैं A B एस्टेरिक C का होल एस्टेरिक, तीनों में कुछ डिफरेंस है? लास्ट वाले में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे B को आप नलीफाई नहीं कर सकते हो, B किसके बीच सैंडविच है, A और C के बीच सैंडविच। सैंडविच का मतलब है कि आपके पास में B स्टैंड अलोन नहीं है, B किसके साथ में है, A और C के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे A अलग है B अलग है, यहाँ पे C अलग है, तो आप जब इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B का एस्टेरिक का मीनिंग ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, या ये C एस्टेरिक के इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास में A B C के इक्विवेलेंट नहीं होगा राइट का होल एस्टेरिक। इसका मतलब क्या हुआ, B एस्टेरिक का मतलब है B हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ से B एस्टेरिक में से एस्टेरिक हटाया तो यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल एक ही B हो सकता है राइट। मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर। अभी क्वेश्चन किसने पूछा था मेरे से? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक और मशीन डिजाइन करते हैं ठीक है। आई ड्रॉ मशीन फॉर यू, Q0 A right, its input B, its input D right, it's Q1 and then C. Okay, machine visible है बेटा? क्लियर? चलो सॉल्व करो इसको, आराम से इजी गोइंग सॉल्व करना राइट, आंसर आ जाएगा। डिस्कस करते हैं राइट, जो प्रॉब्लम आपको गिविंग है उसका सलूशन डिस्कस करते हैं, कैसे सलूशन निकल रहा है। देखो सिमरन ने अभी मुझे करेक्ट आंसर दिया है, रिमेनिंग लोगों के आंसर में थोड़ा सा फ्लॉस है राइट, अदरवाइज ऑलमोस्ट आंसर करेक्ट है राइट।
अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो आपके पास में प्रॉब्लम है वो Q0, सो Q0 पे आपके पास में क्या मिल रहा है, A मिल रहा है, राइट, और यही फाइनल कंडीशन है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक से ज्यादा आपके पास में आउटपुट पे पहुंचने की कंडीशंस हो रही हैं, तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, राइट। सो एक तो आपने किसके लिए प्लस लगाया, A के लिए प्लस लगाया, ओके क्लियर, A प्लस, मीनिंग क्लियर हो रहा है, ओके। अब दूसरा प्लस आपके पास में किसके लिए लगेगा, किससे आप आउटपुट पे पहुंच रहे हैं, देखो आप आउटपुट पे किससे पहुंच रहे हो, चेक करो, बी से, सर बी डी से पहुंच रहे हैं, बी और सी डी से और पहुंच डी रहे से हैं। पहुंच रहे हो, और अच्छा, जहां पे सी तो आपके बीच पास का में सी सैंडविच का, है ना। हाँ सी सैंडविच है, तो सी का एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो इट मींस अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बी सी एस्ट्रिक डी, क्लियर, बी सी एस्ट्रिक डी, क्लियर, और इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट, यानी इनका होल एस्ट्रिक सॉल्व हो गया। सर यही तो मैंने किया है सर। हाँ, अब ये ए एस्ट्रिक जितने लोगों ने लगाया है, आपने यहाँ ए एस्ट्रिक लगाया है, करेक्ट है, राइट। अगर हम ए एस्ट्रिक के ऊपर होल एस्ट्रिक लगा रहे हैं तो हम इस एस्ट्रिक को हटा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यही आपके पास में रेगुलर एक्सप्रेशन होगा इसका। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए प्लस, हाँ या टेल मी बेटा। सर अगर स्ट्रिंग बी सी डी ए है तब सर इधर भी तो ए एस्ट्रिक आएगा, बी सी एस्ट्रिक डी ए एस्ट्रिक। ओके ओके बेटा, देखो फिर से वही चीज समझो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाई हुई थी, फिर से उस चीज को क्लियर करते हैं, राइट। क्या प्रॉब्लम थी, आपने बोला हुआ है कि अगर बी सी डी के बाद ए आएगा तो ये कैसे कंसीडर हो रहा है, देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, हमारे पास में आउटपुट हम लिख देते हैं ए प्लस बी सी एस्ट्रिक राइट डी का होल एस्ट्रिक, क्लियर, और अब आपने बोला ए एस्ट्रिक प्लस बी सी एस्ट्रिक डी का होल एस्ट्रिक, राइट, ये दो आपके पास में है, क्लियर। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम समझें तो ए एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक का मतलब वही है, ए एस्ट्रिक है। अब हम आपसे बोले कि हमने ए कंसीडर किया या बी सी कंसीडर किया, तो हम इस पार्ट को ऐसे समझे, ए एस्ट्रिक प्लस बी सी एस्ट्रिक डी का होल एस्ट्रिक, मीनिंग क्लियर हो रहा है? नो सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रिंग बी सी डी ए है तो कैसे सेटिस्फाइड? बिल्कुल हो जाएगी, देखो बेटा आपके पास में बी सी डी ए है, राइट, मशीन आपके पास में ये गिविंग थी, राइट। सो अब आपके पास में आप बी से यहाँ पे पहुंच जाओगे, सी से यहाँ पे पहुंच जाओगे, डी से यहाँ पे पहुंच जाओगे, अगेन ए चाहिए, तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन में समझते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी सी एस्ट्रिक डी, तो आपने पहले ये वाला पार्ट लिया, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, सॉरी, या तो आपके पास में ये वाला पार्ट हो सकता है या ये वाला पार्ट हो सकता है, तो हमने बी सी डी ले लिया। अब बीसीडी का होल एस्ट्रिक है ना, यानी हम इस पार्ट को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। अब हमने बीसीडी ले लिया, अब हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, बीसीडी ए मिल गया। यस सर अगर ए आप ही तो बोला, या फिर ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। हाँ, अगर हम ए ले ही नहीं बिल्कुल तो... बिल्कुल बेटा, अब देखो यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, एस्ट्रिक लगाया हुआ है। एस्ट्रिक का मतलब है इस पोर्शन को हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एस्ट्रिक हटा देते तब आंसर हमारे पास में या तो ए होता या फिर बी सी डी का कोई भी कॉम्बिनेशन होता, तब आपके पास में आप बोल सकते थे या तो ए होगा या बी सी एस्ट्रिक डी होगा, राइट। लेकिन जब हमने इसका होल एस्ट्रिक लगाया तो इट मींस हम इन पार्ट को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट। तो हमने पहली बार में बोला कि हमने बीसीडी ले लिया है, इसके बाद में हमने इसको ए ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीसीडी ए। ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर करी थी, ए बी का होल एस्ट्रिक, राइट। ए बी का होल एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, ए बी के होल एस्ट्रिक का मतलब होता है आइदर ए और बी और ए और बी और ए बी और बी ए, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यही तो चीज थी। यस सर, मीनिंग क्लियर हुआ बेटा, राइट। सो ऑलमोस्ट आप लोगों ने, सारे लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर ट्राई किया हुआ था, लिटिल बिट आपके पास में प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। सो वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। सर मैंने जो आंसर भेजा था वो सर सही था। एक मिनट बेटा, मैंने चेक नहीं किया हुआ था, आपने क्या बोझा हुआ था, आप मेरे को आंसर बोलो। सर ए एस्ट्रिक प्लस बी सी एस्ट्रिक डी का होल एस्ट्रिक। बेटा ये तो अभी हमने डिस्कस किया। नहीं सर, ये नहीं, हाँ केवल बी सी एस्ट्रिक इसका होल एस्ट्रिक होल एस्ट्रिक, ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देखो ये इसका मीनिंग तो वही हुआ ना, ए एस्ट्रिक मतलब, राइट। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लीमा फॉर्म है, ये आंसर आपके पास में क्यों कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इस चीज का मीनिंग समझना, राइट। ये आंसर कंप्लीटली करेक्ट क्यों नहीं होगा, राइट। ये कंप्लीटली करेक्ट इसलिए नहीं है
राइट। यहाँ पे आपके पास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब अगर आपने होल एस्ट्रिक नहीं लगाया है तो ए एस्ट्रिक हो सकता है या फिर आपके पास में बी सी एस्ट्रिक डी हो सकता है। जो अभी मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई थी बी सी डी ए, अब आप बी सी डी ए इस पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम इस पे सॉल्व नहीं है। मीनिंग क्लियर है? इस पे बी सी डी ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आइदर आप या तो एक बार इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो। तो अगर आपने एक बार इसको ले लिया तो बी सी डी ए हो गया, ए छूट गया। मीनिंग समझ में आया? इसलिए आपको इसका होल एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब बी सी डी ए का होल एस्ट्रिक के पावर में होल एस्ट्रिक लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बी सी एस्ट्रिक डी ही हुआ, राइट। ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर हम ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, राइट। यही मीनिंग होता है इसका। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। अब तो किसी को डाउट नहीं है इतने पार्ट में? सर और प्रॉब्लम्स करवाइए। और प्रॉब्लम्स कराएंगे बेटा। आज आप क्या कहते हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, कंटिन्यूअसली 2 आवर्स, राइट। सर Yes. सर 3-4 तो- क्वेश्चन से जरा भेज दीजिए हम लोग को सर, हम लोग हाँ, Yes, मैं आपको Yeah. प्रॉब्लम सेट में आज आपके साथ में शेयर कर दूंगा, राइट। सो आप उसे